Hello everyone. Today we are going to discuss about one very important topic for all mechanical engineering examination, that is pressure vessel. So this is basically a revision module. In this I'm not going to do the detailed derivation of any particular formulae or any particular concept. We will be just discussing in nutshell the crux of the chapter, the important formulas involved and the important concept which we are supposed to recall while we are solving the objective questions. So beginning with this, so what is pressure vessel? Pressure vessel is basically a vessel which is containing any fluid under pressure, and because of the pressure the stresses and strain are developed. So like pressure vessel, you can have the example of boiler, the cylindrical tank, seamless pipe. By the way, seamless pipe means something which has got no joints. एक ऐसा पाइप जिसमें कोई भी जॉइंट ना हो, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सीमलेस पाइप. सो प्रेशर वेसल को एनालाइज करते समय या उसकी जो डिजाइनिंग करते समय हमें उसके एक डायमेंशंस को जो कैलकुलेट करना होता है और जो जनरली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आते भी हैं, वो होता है उसका थिकनेस. So thickness has to be determined while we are designing the pressure vessel. Now in order to determine the thickness, certain stresses are involved जो कि हमारे pressure vessel में पाए जाते हैं. So before calculating the formula of thickness, we need to know the different stresses involved. तो आपने पढ़ा होगा प्रेशर वेसल में जनरली तीन तरह के स्ट्रेसेस होते हैं. वन इज सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस, जिसको हुप स्ट्रेस भी बोलते हैं, और टेंजेंशियल स्ट्रेस. देन अदर इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एंड देन द लास्ट वन इज रेडियल स्ट्रेस. So circumferential, longitudinal and radial, these three stresses are acting in any pressure vessel. Now जनरली ये देखा गया है कि जो हुप स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, चाहे वो थिन प्रेशर वेसल का केस हो या थिक प्रेशर वेसल का केस हो. नाउ जो प्रेशर वेसल होते हैं वो जनरली दो तरह के होते हैं, थिन प्रेशर वेसल एंड थिक प्रेशर वेसल. थिन प्रेशर वेसल का कंडीशन क्या है कि अगर हमारा जो थिकनेस है प्रेशर वेसल का, इफ इट इज लेस देन 1/10 ऑफ द डायमीटर, then that is the case of thin pressure vessel. And also if the internal pressure of the liquid or the fluid is less than 1/6 of the allowable stress, जो भी जिस मटेरियल का वो बना हुआ है प्रेशर वेसल, उसके स्ट्रेस का जो भी अलाउबल स्ट्रेस दिया होगा उस मटेरियल का, उसका 1/6 हो इंटरनल प्रेशर, देन ऑल्सो इट इज अ कंडीशन ऑफ थिन प्रेशर वेसल. और इसका जो रिवर्स है, जैसे T is greater than D/10 and internal pressure more than 1/6 of the sigma allowable, ये आपका thick pressure vessel का केस होता है. So please make a note of this. This particular thing you can get in objective question of 1 mark, तो वहाँ पे ये important हो जाता है. Now next, so generally आप गेट में देखोगे, you will generally find in gate question related to thin pressure vessel only, and no thick pressure vessel question are coming. But in other state engineering examination and engineering services examination, you will find question related to thick as well. So thin pressure vessel को एनालाइज करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें जनरली सिर्फ दो ही स्ट्रेस एक्ट करते हैं, और जो रेडियल स्ट्रेस होता है उसको हम जो जीरो एज्यूम करते हैं. तो जो हुप स्ट्रेस होता है, यू माइट हैव calculated the hoop stress in case of thin pressure vessel, which is equals to PD upon 2T, and longitudinal stress is PD upon 4T. By the way, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, these are for cylindrical thin pressure vessel. अगर सपोज हमारा किसी और शेप का प्रेशर वेसल होता है, सो ओवर देयर द फॉर्मूला इज गोइंग टू चेंज. जनरली आपको क्वेश्चन में सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल ही मिलेंगे. और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई और जो रेगुलर फिगर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्फेरिकल प्रेशर वेसल आ गया, तो उस केस में आपको पता है कि चूंकि उसकी डायमेंशन इन ऑल डायरेक्शन आर सेम, चाहे रेडियली जाओ आप, जिस भी डायरेक्शन में जाओ आपको रेडियस ही के बराबर डिस्टेंस मिलती है. तो उस केस में उसका हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दोनों इक्वल होता है, एंड दैट इज इक्वल टू PD अपॉन 4T, जहां पे D उसका डायमीटर होगा स्फेरिकल प्रेशर वेसल का. तो सिमिलरली ओवर हियर आल्सो, हुप स्ट्रेस इज PD अपॉन 2T एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज PD अपॉन 4T, जिसमें D इज द डायमीटर ऑफ द प्रेशर वेसल एंड T इज द थिकनेस. इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक नंबर के जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, आपको जो डिमेंशन दिया रहेगा और थिकनेस दिया रहेगा, और आपको हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैलकुलेट करने को बोल सकता है. एक तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, यू विल आल्सो गेट क्वेश्चन रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस.
तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का अगर आप फॉर्मूला आप देखते हो तो आपको पता होगा इट इज सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन 2. फाइन, you might have read this in strength of material. Now मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस में भी आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे. एक पूछेगा इन प्लेन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन प्लेन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस? दैट मींस इन प्लेन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालते समय आपको वो स्ट्रेसेस लेने होंगे जो कि हमारे सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल की प्लेन में एक्ट कर रहा है. तो उसको कैलकुलेट करने से पहले हम एक इसका नेचर देख लेते हैं और जो डायरेक्शन है उसको हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी. जैसे फॉर एग्जांपल जो हुप स्ट्रेस होता है, हुप स्ट्रेस एक्ट टेंजेंशियली ऑन द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन वो होता है जो कि हमारे किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के एक्सिस को कंटेन करे. तो ऐसा सेक्शन जिसमें एक्सिस इंक्लूडेड रहता है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है, या ऐसे बोला जाए एक्सिस के पैरेलल जो भी सेक्शन होता है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है. तो सिलेंडर के केस में हमारा ये जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन शो किया गया वो ऐसे हॉरिजॉन्टली है और इसी पे टेंजेंशियली हुप स्ट्रेस एक्ट करता है. So make a note of this. Hoop stress act tangentially on longitudinal section, not transverse section. Transverse section तो वो होता है जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव शोन ओवर हियर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन. हमने इस सिलेंडर को वर्टिकली कट किया एक सेक्शन लेके, तो जो हमारा ये जो दो अलग अलग जो क्रॉस सेक्शन दिख रहे हैं ये मेरा ट्रांसवर्स सेक्शन है. तो जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है it act on transverse section whereas hoop stress act on longitudinal section. तो आप ये जो टर्मिनोलॉजी है कि longitudinal stress कहीं longitudinal section पे एक्ट करो, इससे कंफ्यूज ना होइएगा. ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है जनरली कि longitudinal stress act on which section, transverse section or longitudinal section. Now having known the exact nature of these two stresses और किस तरीके से एक्ट करते हैं, बाय द वे हुप स्ट्रेस जो होता है वो टेंसाइल नेचर का होता है और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है वो भी टेंसाइल नेचर का होता है. और रेडियल स्ट्रेस तो इस केस में जीरो होता है तो उसकी तो बात ही नहीं करनी है. तो आपसे पूछा गया है कि इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी. इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में हमें वो दो स्ट्रेस वैल्यू लेने हैं जो कि हमारे सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल की प्लेन में एक्ट कर रहा है. तो हमारे सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल के जो दो प्लेन है वो कौन से हैं? एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है, एक ट्रांसवर्स प्लेन है. लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में हुप स्ट्रेस एक्ट कर रहा है और ट्रांसवर्स प्लेन में जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो एक्ट कर रहा है. तो ओवर हियर you will take sigma maximum as PD upon 2T and sigma minimum as PD upon 4T. So substitute the value, divide by 2, you will get the value of in plane maximum shear stress as PD upon 8T. Please make a note of this. In plane maximum shear stress की value PD upon 8T है. Whereas suppose if you get a question asking to calculate the absolute shear stress, तो absolute shear stress में आपको plane ये नहीं देखना है कि जो भी हमारा प्रेशर है उसके प्लेन में तो कौन सा वो एक्ट कर रहा है स्ट्रेस. वी आर जस्ट सपोज टू सी कि मैक्सिमम तो कौन सा स्ट्रेस एक्ट कर रहा है और जो मिनिमम कौन सा है. तो मैक्सिमम स्ट्रेस तो हमारा हुप स्ट्रेस है विच इज पीडी अपॉन 2t एंड द मिनिमम स्ट्रेस इज रेडियल स्ट्रेस जिसकी वैल्यू 0 है. पीडी अपॉन 2t माइनस 0 अपॉन 2, दिस गिव्स यू द वैल्यू एज पीडी अपॉन 4t. सो आप डिफरेंस देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट शियर स्ट्रेस 2 टाइम्स है इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का. ये क्वेश्चन बहुत बार जो टेस्ट सीरीज में पूछा जा चुका है एंड स्टूडेंट जनरली डू मिस्टेक इन दिस. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस एक और क्वेश्चन आता है थिन प्रेशर वेसल से रिलेटेड. वो होता है कि अगर एफिशिएंसी दे दी गई है क्वेश्चन में तो आपको थिकनेस कैलकुलेट करने को बोलेगा. सो डिपेंडिंग अपॉन हुप स्ट्रेस दिया है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दिया है, उसमें आप वो फॉर्मूला लिख के और जस्ट एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो आपको थिकनेस वो आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा वहां से. तो ये जनरली बहुत कम देखा जाता है, बट अगर आ जाए तो यू कैन सॉल्व इन दिस मैनर. इसके अलावा एक और चीज बच जाता है कि आपने स्ट्रेस की वैल्यू निकाल ली सिलेंडर प्रेशर केस में. अब स्ट्रेन का वैल्यू भी पूछता है कि जो कौन कौन से स्ट्रेन एक्ट कर रहे हैं हमारे प्रेशर वेसल में, तो उसका जो जनरलाइज रिजल्ट पूछ सकता है या टू कैलकुलेट द वैल्यू, इन दोनों में से कोई भी चीज पूछ सकता है.
तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा सिलेंडर है इसके दो डायमेंशन है, एक है उसका जो लेंथ है पूरे सिलेंडर की और एक है जो डायमीटर है। तो एक हमारा जो चूंकि हमारे स्ट्रेस भी दोनों डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो एक जगह हमें जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं डायमेट्रिकल स्ट्रेन एंड द अदर स्ट्रेन इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जो डायमेट्रिकल स्ट्रेन है उसको अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर कोई बाई एक्सियल स्ट्रेस्ड बॉडी है तो अगर हमें स्ट्रेन कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं यूजिंग पॉइजन्स रेशियो। सो in this way we will write the value of strain, and finally we are getting the value as PD upon 4TE 2 minus Poisson's ratio. So this is the value of diametrical strain in case of cylindrical pressure vessel. Similarly, if you calculate the value of longitudinal strain, you will get as PD upon 4TE 1 minus 2 times Poisson's ratio. Fine. तो ये जो दोनों एग्जांपल हैं, जो दोनों फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको डायरेक्ट ये वैल्यू ये फॉर्मूला ही पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, या वैल्यू देके कैलकुलेट करने को पूछ सकता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डायमेट्रिकल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू मस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर रिजल्ट अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही जल्दी से इसको सॉल्व करना है। नाउ हैविंग नोन दीज टू स्ट्रेन, आप वॉल्यूमेट्रिकल स्ट्रेन कैलकुलेट बहुत आसानी से कर सकते हो। लाइक ओवर हियर यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल, और इसको अगर आप 11th की फिजिक्स लगाएंगे तो इसका इसको डेरिवेटिव लेके यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट। तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा एल बाई एल, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। एंड डेल्टा डी बाई डी को सब्स्टिट्यूट करना है E1 एंड डेल्टा एल बाई एल को E2, जो कि अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया था। सो थ्री थिंग्स यू आर गोइंग टू कैलकुलेट ओवर हियर, वन इज diametrical strain, other is longitudinal strain, and the third is volumetric strain. Now this thing complete your entire thin pressure vessel. इसके अलावा you will not get any type of question related to thin pressure vessel. और इतने ही फॉर्मूले आपको रिमेंबर करने हैं, इतने ही जो भी आपको कंसेप्ट बताए गए हैं आपको थिन प्रेशर वेसल से रिलेटेड याद रखने हैं। और जो तो कौन से सेक्शन पे हुप स्ट्रेस एक्ट करता है, कौन से सेक्शन पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल नॉट गेट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू थिन प्रेशर वेसल। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज थिक प्रेशर वेसल। थिक प्रेशर वेसल केस में भी चूंकि प्रेशर वेसल की बात हो रही है तो अभी मैंने पीछे बताया कि जनरली तीन तरह के स्ट्रेस एक्ट करते हैं। वन इज हुप स्ट्रेस विच इज ऑल्सो नोन एज सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, देन अदर इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड अदर इज रेडियल स्ट्रेस। एक चीज मैं बताना भूल गया, थिन प्रेशर वेसल के केस में जो भी हमारे स्ट्रेस एक्ट कर रहे थे, हुप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या रेडियल स्ट्रेस, ये तीनों के तीनों स्ट्रेस यूनिफॉर्म इन नेचर थे। मतलब अगर हम अपने प्रेशर वेसल का कोई भी जो क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो उनकी वैल्यू हर जगह सेम रहेगी, दे आर नॉट गोइंग टू वेरी। वेयर एज इन केस ऑफ थिक प्रेशर वेसल द स्ट्रेसेस आर नॉन यूनिफॉर्म। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, यू कैन गेट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस इन ऑब्जेक्टिव कि थिक प्रेशर वेसल में या स्टेटमेंट बेस में आ सकता है कि जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है। और अपार्ट जो भी जो तीन स्ट्रेसेस हैं उनमें से कौन सा स्ट्रेस का वेरिएशन किस तरीके से है, डायग्राम के थ्रू पूछ सकता है। कौन से स्ट्रेस यूनिफॉर्म है, कौन से स्ट्रेस नॉन यूनिफॉर्म है, क्या सारे स्ट्रेस नॉन यूनिफॉर्म है। तो वी विल बी सीइंग दीज थिंग्स इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स। तो हियर आल्सो वी हैव टेकन अ सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल जिसका इनर डायमीटर है DI, आउटर डायमीटर है D0, और आपने इसका जो डेरिवेशन देखा होगा एंड यू माइट हैव known the fact that the hoop stress is non-uniform in nature and it has got maximum value at inner surface of cylinder, that is at inner diameter DI sigma hoop की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है and it gradually decreases towards outer surface. Whereas अगर रेडियल स्ट्रेस का हमने नेचर देखा था तो वो इनर डायमीटर पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम थी बट जो नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम थी दैट इज -PI जो कि इक्वल टू इंटरनल प्रेशर है, और आउटर डायमीटर पे इसकी वैल्यू 0 थी।
तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, हुप स्ट्रेस की आउटर डायमीटर पे सर्टेन वैल्यू है, वेयर रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू 0 है आउटर पे। और इन दोनों का ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दिस आई हैव टेकन अ सिलेंडर cross section, and a variation of hoop stress has been shown from inner diameter to outer diameter, and similarly a cross section of cylindrical pressure vessel has been taken over here, and the variation of radial stress has been shown from inner diameter to outer diameter. तो डायरेक्ट डायग्राम दे के भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा इसमें से सही है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बाउंड्री कंडीशन आपको याद रखनी है कि रेडियल स्ट्रेस की इनर डायमीटर पे माइनस पी आई वैल्यू है, आउटर डायमीटर पे 0 है। जब आपने पूरा डेरिवेशन देखा होगा तो वहां पे यू माइट हैव गॉट टू नो दैट द हुप स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू है जो कि इनर डायमीटर पे है, उसका मैग्नीट्यूड है पी आई डी नॉट स्क्वायर प्लस डी आई स्क्वायर अपॉन डी नॉट स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, बिकॉज आप कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको मिलेगा जहां पे आपको डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करने को बोल सकता है, और कुछ ऐसे कंसेप्चुअल चूज पूछेगा जहां पे आपको इस फॉर्मूले से रिलेटेड एनालाइज करने की जरूरत पड़ेगी। सो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बहुत ही ईजी है। डी नॉट डी आई आपको पता ही है, तो उसके सिलेंडर के डायमेंशन ही है, और बहुत ही 2-3 बार अभी फॉर्मूला देखेंगे तो यू कैन इजिली रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इट इज नॉट एट ऑल वेरी डिफिकल्ट। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला तो आप जरूर याद रखिए, और इसका अभी आगे थिकनेस निकालते समय भी यूज पड़ेगा। थिकनेस ऑफ थिक प्रेशर वेसल निकालते समय भी इसका यूज पड़ता है। तो ये हो गया हुप स्ट्रेस की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एट इनर डायमीटर, और आउटर डायमीटर पे जो उसकी वैल्यू है वो भी डेरिवेशन में आपने देखा होगा, इसकी वैल्यू आई थी 2 टाइम्स पी आई डी आई स्क्वायर अपॉन डी नॉट स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर, वेयर पी आई इज द इंटरनल प्रेशर ऑफ द फ्लूइड और लिक्विड विच इज फिल्ड इन इट। तो ये तो हो गया हमारा हुप स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस का वेरिएशन। नाउ एक स्ट्रेस जो बनता है वो होता है, बचता है, वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सो आउट ऑफ ऑल द 3 स्ट्रेस it is only the longitudinal stress which is uniform over cylinder wall thickness. तो longitudinal stress मेरा थिन के केस में भी यूनिफॉर्म था और थिक प्रेशर वेसल के केस में भी यूनिफॉर्म है। इसकी वैल्यू कितनी है, जैसे आप वहां पर जो डिराइव किए थे, सिमिलरली यू कैन derive over here also, very easy. You will get the value as pi di square upon d naught square minus di square. So very easy to remember. आप देख सकते हो इसका जो फॉर्मूला है सिमिलर पैटर्न में है हुप स्ट्रेस के आउटर डायमीटर पे जो वैल्यू दी गई है। तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला आल्सो, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्ट जनरलाइज रिजल्ट पूछ देता है कई बार एग्जाम में, तो ये बहुत ईजी फॉर्मूले हैं, आपको मार्कअप करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपरली आप फिगर को एनालाइज करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसको लिख सकते हैं खुद से। नाउ having known the value of stresses, now it's time to calculate the value of thickness, क्योंकि डिजाइन करते समय हमें थिकनेस की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी होती है प्रेशर वेसल में। तो इसके लिए बहुत सारे थ्योरी दी गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक लेम्स थ्योरी है, और ये जो थ्योरीज हैं, डिफरेंट इक्वेशंस हैं, ये डिपेंड करेंगे कि हमारे प्रेशर वेसल का मटेरियल क्या है एंड वो उसके जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है। मतलब उसका जो हमारा प्रेशर वेसल है वो ओपन एंड्स का है या क्लोज्ड एंड्स का है। सो अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, द इक्वेशन यूज्ड टू कैलकुलेट द थिकनेस विल बी डिफरेंट। तो लेम्स थ्योरी की बात करते हैं तो ये बेसिकली ब्रिटल मटेरियल के लिए हमें थिकनेस प्रोवाइड करता है, और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी यूज करता है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ये कहता है कि हमारा कंपोनेंट, आवर कंपोनेंट विल फेल ओनली व्हेन, इन केस ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आवर कंपोनेंट विल फेल ओनली व्हेन द प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑफ द कंपोनेंट इक्वल्स द प्रिंसिपल स्ट्रेस जो कि फेल्योर के टाइम सिंपल टेंशन टेस्ट में डेवलप होता है। मतलब हमारे जो भी कंपोनेंट है उसका प्रिंसिपल स्ट्रेस इक्वल्स टू प्रिंसिपल स्ट्रेस जो कि फेल्योर के टाइम सिंपल टेंशन टेस्ट में डेवलप होता है। सो सिंपल टेंशन टेस्ट में फेल्योर के टाइम तो कौन सा प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप होता है, उसकी वैल्यू होती है सिग्मा वाई, टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ, उसको हम सिग्मा वाई से जो डिनोट करते हैं। तो अगर हमारा सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाता है
तो हमारा कंपोनेंट फेल हो जाएगा एज पर द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको हम रैंकिन थ्योरी भी बोलते हैं, और ये ब्रिटल मटेरियल के लिए जो थ्योरी होता भी है। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ओवर हियर। हमारे इस केस में जो हमारा सिग्मा 1 है, इट इज नथिंग बट हूप स्ट्रेस, क्योंकि आउट ऑफ ऑल द थ्री स्ट्रेसेस सिग्मा एच इज द लार्जेस्ट स्ट्रेस। तो जो सिग्मा एच की वैल्यू अभी मैंने ऊपर बताई थी, मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज सिग्मा एच इक्वल्स टू पी आई डी नॉट स्क्वायर प्लस डी आई स्क्वायर अपॉन डी नॉट स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर। इसी के अरेंजमेंट से हमें थिकनेस की वैल्यू आ जाएगी। व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमको पी आई को सिग्मा एच के नीचे लाना है, then on the right hand side we will be left with d naught square plus di square upon d naught square minus di square। see कितने आसानी से आप ये पर्टिकुलर थिकनेस निकाल सकते हो बिना याद किए, और अगर याद करना भी चाहो तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है। 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसानी से रिकॉल कर सकते हो। बट सपोज अगर आप भूल जाते हो तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, जस्ट यू हैव टू ब्रिंग द पी आई in the denominator of sigma h, and then on the right hand side you will be left with d naught square plus di square upon d naught square minus di square। just apply componendo and dividendo। अगर आपको componendo and dividendo रेशियो प्रोपोर्शन का आता है तो बहुत ही आसानी से आप थिकनेस निकाल सकते हो विद द ओनली सब्सटीट्यूशन कि जब आप पूरा स्क्वायर वाले टर्म्स हटा दोगे तो आपको डी नॉट की जगह सब्सटीट्यूट करना है डी आई प्लस 2 टाइम्स थिकनेस, एंड इट विल बी डन। फिर आपको नॉर्मल अरेंज कर दोगे, थिकनेस की वैल्यू, थिकनेस को एक साइड रखना है, बाकी सबको आरएचएस में भेज के आपको ये थिकनेस की वैल्यू आ जाएगी, विच इज नथिंग बट डी आई बाई 2 अंडर रूट ऑफ सिग्मा एच प्लस पी आई अपॉन सिग्मा एच माइनस पी आई माइनस 1। और सिग्मा एच की वैल्यू अभी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से जो हमने बताया था, सिग्मा लेवल अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सिग्मा लेवल क्वेश्चन में दिया रहेगा इन द फॉर्म ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस एंड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में थिकनेस कैलकुलेट को करने को बोल देगा थिक प्रेशर वेसल में। आपको कहीं ये नहीं बताया रहेगा कि क्वेश्चन में अलग से लिखे कि लेम्स इक्वेशन यूज करना है। आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा इक्वेशन एप्लीकेबल होगा। वो आप कैसे देखोगे? आपको ये चेक करना है कि हमारा जो भी मटेरियल, जिस भी मटेरियल का प्रेशर वेसल बना है वो ब्रिटल मटेरियल है या डक्टाइल मटेरियल है। तो सपोज अगर हमें दिया है कि हमारा प्रेशर वेसल इज मेड ऑफ द कास्ट आयरन, so that means cast iron is the brittle material, so Lehm's theory is going to be used over here। आपको अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू दी रही होगी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया रहेगा, आपको सब चीज सब्स्टिट्यूट करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थिकनेस। so this is one of the equation for calculating the thickness of thick pressure vessel in case of our pressure vessel is made of brittle material। now इसके अलावा दो और इक्वेशन हैं, दे आर क्लेवर्नियर इक्वेशन एंड बर्नी इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन जो हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए हैं कि अगर हमारा प्रेशर वेसल डक्टाइल मटेरियल का बना होता है तो क्लेवर्नियर इक्वेशन और बर्नी इक्वेशन यूज होते हैं। क्लेवर्नियर इक्वेशन का और बर्नी इक्वेशन में डिफरेंस ये है कि जो क्लेवर्नियर इक्वेशन है, इट इज यूज्ड व्हेन द प्रेशर वेसल इज मेड ऑफ डक्टाइल मटेरियल एंड इट हैज गॉट क्लोज्ड एंड नॉट ओपन एंड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिलेंड्रिकल टैंक दिया है क्वेश्चन में तो ये हो गया हमारा क्लोज्ड एंड का केस। वहीं अगर सीमलेस पाइप दिया होता, मतलब एक तरफ से इनफ्लो हो रहा है एक तरफ से आउटफ्लो हो रहा है, सो इट इज अ केस ऑफ ओपन एंड्स। तो आपको क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन नहीं रहेगा कि इट इज अ केस ऑफ क्लोज्ड एंड और डक्टाइल मटेरियल। आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज समझना होगा वेदर इट इज अ केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल और क्लोज्ड एंड। तो अगर क्वेश्चन में सिलेंड्रिकल टैंक लिखा है, कोई भी टैंक लिखा है, स्फेरिकल टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक, तो दैट मीन्स इट इज केस ऑफ क्लोज्ड एंड। और अगर माइल्ड स्टील, प्लेन स्टील का मटेरियल बना है, कोई भी डक्टाइल मटेरियल अगर दिया है, तो आपको ऐसे एनालाइज करके एनालाइज करना होगा कि क्लेवर्नियर इक्वेशन यूज होगा या बर्नी इक्वेशन। क्लेवर्नियर इक्वेशन में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी यूज होता है, जिसके तहत कंपोनेंट हमारा तब फेल होगा व्हेन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन इन कंपोनेंट इक्वल्स टू स्ट्रेन एट द टाइम ऑफ टेंशन टेस्ट। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल, अगर कोई मेरा स्ट्रेस बॉडी है, तीनों डायरेक्शन में उसको स्ट्रेस लग रहा है और सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 इसके प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं,
तो आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा होगा कि उस केस में हमें स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है. दिस वे वी आर गोइंग टू राइट द वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन. अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिग्मा एच, सिग्मा एल और सिग्मा आर सब्स्टिट्यूट हो जाता है. और जब हम सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमें जो थिकनेस की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आती है डी आई बाई टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा प्लस 1 माइनस 2 न्यू पी आई अपॉन सिग्मा माइनस 1 प्लस न्यू पी आई माइनस 1 where न्यू इज पॉइजन्स रेशियो. ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर. और इसको रिमेंबर करने का तरीका ये है कि आप जो स्ट्रेन वाली इक्वेशन है इसको बहुत ध्यान से देखो. ये अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कई बार प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे 1 माइनस 2 न्यू वाला टर्म्स आएगा. तो यहाँ पे जनरली आपको ये फॉर्मूला अगर 2-3 बार लिखोगे तो आपको बहुत आसानी से आप इसको राइट आउट कर सकते हो. डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में कंडीशंस दिए रहेंगे एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, और बहुत ही आसानी से आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है. सो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड मेक अ नोट ऑफ ऑल दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई टोल्ड जस्ट नाउ. कि अगर सिलेंड्रिकल टैंक दिया है मतलब क्लोज्ड एंड का केस है, माइल्ड स्टील, प्लेन स्टील या कोई भी डक्टाइल मटेरियल दिया है तो वहाँ से आप समझ जाओगे कि कौन सा मटेरियल है. एंड देन अकॉर्डिंगली आप बर्नी क्वेश्चन लगाना है या क्लेवर्नी क्वेश्चन लगाना है वो एनालाइज कर सकते हो. सिमिलरली जो बर्नी क्वेश्चन है वो ओपन एंड के लिए होता है डक्टाइल मटेरियल के लिए. और यहाँ पर मेरा जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है सिग्मा एल, इसकी वैल्यू 0 होगी. गॉट इट? जैसे 0 होगी. और सीमलेस पाइप वाला केस होता है ओपन एंड्स में, और भी कोई कंडीशन हो सकते हैं. सीमलेस पाइप इज वन ऑफ द एग्जांपल. तो इस केस में थिकनेस की वैल्यू जो आती है वो है डी आई बाई टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा प्लस 1 माइनस न्यू पी आई अपॉन सिग्मा माइनस 1 प्लस न्यू पी आई माइनस 1. तो आप देख सकते हो दोनों इक्वेशन में एवरीथिंग इज सेम विद द ओनली डिफरेंस कि यहाँ पे माइनस 2 न्यू है, यहाँ पे माइनस न्यू है. तो बहुत ही ध्यान से आप एनालाइज करोगे और दोनों फॉर्मूले को बार बार लिखोगे सो यू कैन वेरी रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. और सिग्मा अकॉर्डिंगली आपको ये सिग्मा वर्किंग स्ट्रेस है विच इज नथिंग बट सिग्मा अलेबल अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी. और आपको अल्टीमेट स्ट्रेस दिया रहेगा क्वेश्चन में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया रहेगा, तो वहां से आप सिग्मा वर्किंग की वैल्यू निकाल लोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे. तो ये हो गए हमारे थिकनेस निकालने के फॉर्मूले इन केस ऑफ थिक प्रेशर वेसल. नाउ एक चीज और बचता है थिक प्रेशर वेसल का, सॉरी आफ्टर थिक प्रेशर वेसल, दैट इज कंपाउंड सिलेंडर केस. तो अभी तक हमने थिक प्रेशर वेसल और थिन प्रेशर वेसल देख लिया है. इसके बियॉन्ड आपको कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू थिक या थिन नहीं आएंगे जो मैंने बताए हैं, या ऑब्जेक्टिव में कोई रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, इसके अलावा नहीं आएगा. आपको जो फॉर्मूले हाईलाइट किए गए हैं ओनली दोज फॉर्मूले यू आर सपोज टू रिमेंबर. आपको जो फिगर मैंने बोला है वेरिएशन सिग्मा हुक का, सिग्मा आर का, कौन सा स्ट्रेस यूनिफॉर्म है, कौन सा स्ट्रेस नॉन यूनिफॉर्म है, ऑल दिस थिंग यू आर सपोज टू रिमेंबर एंड नथिंग एल्स. नाउ कंपाउंड सिलेंडर जाने से पहले एक चीज हमें एनालाइज करना है कि कंपाउंड सिलेंडर की नीड क्यों पड़ी. इसका आंसर आपको लेम थ्योरी का इक्वेशन अगर आप देखोगे तो उससे आपको मिल सकता है इफ यू ट्राई टू एनालाइज इट प्रॉपरली. Now if you see over here, it is written the value of thickness as di by 2 under root of sigma h plus pi upon sigma h minus pi minus 1. तो सपोज अगर ऐसा केस होता है कि हमारा इंटरनल प्रेशर इज मोर देन और इक्वल टू द हुप स्ट्रेस और द वर्किंग स्ट्रेस. अगर हमारा जो भी फ्लूइड या लिक्विड फिल हो रहा है हमारे प्रेशर वेसल में, उसका इंटरनल प्रेशर उस पर्टिकुलर प्रेशर वेसल के वर्किंग स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाता है या बराबर हो जाता है, तो यू कैन सी फ्रॉम द इक्वेशन कि उस केस में हम थिकनेस की वैल्यू कभी भी फाइंड आउट नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि हमारे अंडर रूट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी या फिर जीरो हो जाएगी. सॉरी, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो जाएगा, ओवरऑल इनफाइनाइट हो जाएगा. So that means if my internal pressure is going to be more than or equal to the working stress, then no thickness is possible to prevent failure. और ऐसे सिचुएशन तो हमें कई बार देखने को मिलते ही हैं कि हमारा इंटरनल प्रेशर goes more than the working stress of the material. So there comes the need of compound cylinder. This particular problem can be overcome through compound cylinder.
तो ये जो रीजन है कि क्यों कंपाउंड सिलेंडर का यूज होता है, ये एक बार इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन में आ चुका है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में और असर्शन रीजन में आप बोल सकते हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको किसी भी एग्जाम में ये दोबारा मिल सकता है, तो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। नाउ कंपाउंड सिलेंडर में भी आपने बहुत सारे डेरिवेशन और फॉर्मूले देखे होंगे। हम लोग सिर्फ वो फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है, विच यू आर सपोज टू रिमेंबर, और जिससे आपके क्वेश्चन बनेंगे, दैट्स इट। तो कंपाउंड सिलेंडर जो है उसमें जनरली एक जैकेट होता है, एक सिलेंडर होता है। जो जैकेट है उसका जो डायमीटर है वो D2 और D3 है, और सिलेंडर का डायमीटर D1 और D2 है। जनरली जो जैकेट का इनर डायमीटर होगा, जैसे जो कि D2 यहाँ पे शो किया गया है, वो D2 से थोड़ा कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन वेयर इनर डायमीटर जैकेट विल बी एक्चुअली इन एक्चुअल D2 माइनस डेल्टा, वेयर डेल्टा इज नथिंग बट द इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, वी विल सी फर्दर। वो इसलिए होता है डायमीटर थोड़ा सा कम कि हम लोग जनरली जैकेट को सिलेंडर के ऊपर स्लाइड कैसे करते हैं, वी डायमीटर उसका कम होता है, सो वी हीट इट एंड अपॉन हीटिंग इट एक्सपैंड्स। और जैसे ही वो D2 से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, वी स्लाइड इट ओवर द सिलेंडर एंड व्हेन इट कूल्स इट अप्लाइज अ श्रिंक प्रेशर ऑन द सिलेंडर, और एक श्रिंक फिट, टाइट फिट जो डेवलप होता है, तो हमारे लीकेज नहीं होते हैं और अकॉर्डिंगली हमारा स्ट्रेस की वैल्यू भी एक स्टेबलाइज रहती है। तो जब जैकेट हमारा फिट हो गया सिलेंडर के उसमें, तो आप देख सकते हो कि जैकेट एक श्रिंकेज प्रेशर लगाएगा सिलेंडर के ऊपर। सो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ सिलेंडर विल आल्सो अप्लाई सिमिलर प्रेशर ऑन द जैकेट। तो अगर आप जैकेट को एनालाइज करो तो आप देखोगे यहाँ पे समथिंग, एक सिलेंडर ऐसा है जिसका इनर डायमीटर D2 है, आउटर डायमीटर D3, और एक इंटरनल प्रेशर P लग रहा है जो कि श्रिंकेज प्रेशर है। तो ये जनरली ये तो डायरेक्टली हमारा जो अभी हमने थिक प्रेशर वेसल पढ़ा है वही वाला केस हो गया, बस यहाँ पे D2 और D3 चेंज है। दैट मीन्स अगर हमारा हुप स्ट्रेस की वैल्यू हो, रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू हो, वो सारे के सारे सेम होंगे, सेम फॉर्मूला, ओनली D2 और D3 को हमें अकॉर्डिंगली रिप्लेस करना है। फाइन। बस हमारा जो चेंजेस आएगा वो हमारा आता है सिलेंडर में, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर में प्रेशर जो है, श्रिंकेज प्रेशर बाहर की साइड से लग रहा है, तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन चेंज है। वो चेंजेस क्या होंगे, चेंजेस ये होंगे कि एक तो पहले जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो ये हैं कि this time our radial stress will have maximum value at the outer diameter, that is at r equals to D2 by 2, sigma r will be P, and at r equals to Di by 2 sigma r will be 0। तो D1 पे सिग्मा आर की वैल्यू 0 और D2 पे सिग्मा आर की वैल्यू P। जो हमारा पुराना वाला बाउंड्री कंडीशन था उसका बस उल्टा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है P वो बाहर की तरफ से लग रहा है, ना कि अंदर की तरफ से। तो ये तो डिफरेंस हो गया हमारा इसके लिए, रेडियल स्ट्रेस के लिए। सिमिलरली जो भी हमारा हुप स्ट्रेस होगा उसका भी सेम वही फॉर्मूला होगा, बस माइनस की जगह प्लस का साइन लग जाता है। जैसे अगर हम इसमें हुप स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो हो जाएगा P टाइम्स D2 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर अपॉन D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर, सेम थिंग, नथिंग एल्स। और सिग्मा आर मैंने बता ही दिया। तो यहाँ पे हमारा मोटिव क्या है, जनरली क्वेश्चन में आपको आएगा क्या, यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ द जैकेट, जिसमें आपको D3 दिया रहेगा, D2 जनरली पूछता है। D2 के लिए मैंने बताया कि इनर डायमीटर उसका रहेगा D2 माइनस डेल्टा। डेल्टा क्या है, इंटरफेरेंस। डेल्टा कैसे आएगा, डेल्टा वो है कि इट इज द कंबाइंड स्ट्रेन डेवलप्ड इन द जैकेट एंड द सिलेंडर बिकॉज ऑफ द श्रिंकेज प्रेशर। दैट मीन अगर हम डेल्टा को रिप्रेजेंट करें तो डेल्टा विल बी डेल्टा J प्लस डेल्टा C, where delta J is the strain change in dimensions of the jacket because of the shrinkage pressure, and delta C is the change in dimension of the cylinder because of the shrinkage pressure. And make a note here, shrinkage pressure P is not equal to the internal pressure. Internal pressure की कोई और वैल्यू हो सकती है, ये तो shrinkage pressure डेवलप हुआ है because of the tight fit between the jacket and the cylinder। तो सिमिलरली जैसे हमने स्ट्रेन अभी पहले कैलकुलेट किया था, सिमिलरली स्ट्रेन का फॉर्मूला लिख के डेल्टा J चेंज इन जो डिमेंशन ऑफ डायमीटर हुआ है, डेल्टा J अपॉन D2 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सिग्मा H माइनस पॉइजन्स रेशियो सिग्मा R।
सिग्मा एच की वैल्यू यहाँ पे सेम मैंने अभी बताया है, बस d2 d3 चेंज हो जाएंगे, तो भी आपको दोनों सब्स्टिट्यूट कर देना है, सिग्मा आर को सब्स्टिट्यूट कर देना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जे एस pd2 अपॉन e d3 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन d3 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर प्लस पॉइजन रेशियो। ओके, एक फॉर्मूला आप याद कर लोगे तो आपको फिर जो नेक्स्ट फॉर्मूला है डेल्टा सी, वो इसी के अकॉर्डिंगली बस लिख देना है विद द ओनली चेंजेस इन द साइन। तो डेल्टा सी इज माइनस पी डी टू अपॉन ई डी टू स्क्वायर प्लस डी वन स्क्वायर अपॉन डी टू स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर माइनस पॉइसन रेशियो। तो आप देख सकते हैं एक माइनस यहाँ और ये प्लस वाले को माइनस बनेंगे, दैट्स इट। ये फॉर्मूले भले आपको देखने में डिफिकल्ट लग रहे हों, बड़े लग रहे हों, बट अगर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार लिखोगे, एक सेट पैटर्न पे है फॉर्मूले, तो आप बहुत आसानी से इसको रिकॉल कर सकते हो। मैं खुद इसको 2-3 बार लिखने के बाद मुझे ये पूरे फॉर्मूले याद हो गए थे। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। एंड सो हैविंग नोन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जे एंड डेल्टा सी, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरफेरेंस, और फिर आपको इनर डायमेंशन ऑफ जैकेट, इनर डायमीटर ऑफ जैकेट निकालने को बोल सकता है। सो दिस फिनिशेज योर एंटायर प्रेशर वेसल चैप्टर। इसके अलावा प्रेशर वेसल से रिलेटेड कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी स्ट्रेस का वेरिएशन या फॉर्मूले और कोई भी क्वेश्चन या इसके बियॉन्ड नहीं पूछेगा। आई हैव कवर्ड ऑल दोज फॉर्मूलाज प्रीवियस से क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए, जिनकी ज़रूरत है, जो हमें याद रखनी चाहिए, जो हमें स्ट्रेस का वेरिएशन याद रखना चाहिए, वो सारी चीज़ मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सो होप यू गाइज लाइक इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ डू राइट समथिंग इन द कमेंट्स। I will try to solve it, and I will be bringing some more revision module जो मुझे लगता है कि जनरली स्टूडेंट को दिक्कत करता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।